Hello students. Today I am going to teach a very vibrant topic for UGC NET which comes under database management system, that is database modeling. And from this topic also many questions used to come, whether you are a student of BCA, MCA, BTech, MTech, or you are preparing for any competitive examination, you have to attempt these kind of questions. For that your basic concept has to be clear. So first thing is we'll understand about what is database modeling. So as you can see, database modeling is the process of creating a conceptual representation of data, its relationship, and the rules governing it. It helps to organize, structure, and define how data is stored, accessed, and managed, often serving as the blueprint for database design. When we design a database means when we create how to create a database. जब हम कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जैसे सपोज IRCTC या कोई भी साइट हो गई या फिर स्टूडेंट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर हो गया, तो वी यूज टू फिल सम डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म, और वो डिटेल कहाँ पे जाती है? एवरी सॉफ्टवेयर और एवरी एप्लीकेशन इज कनेक्टेड विथ अ डेटाबेस. हर एप्लीकेशन का या हर सॉफ्टवेयर का अपना एक रिपोजिटरी होता है विच इज़ कॉल्ड डेटाबेस. और डेटाबेस में जब आप एप्लीकेशन में डेटा फीड करते हो और वो जो डेटा जाता है वो डेटाबेस के अंदर किस तरह से अरेंज होता है, विच इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडलिंग, is the process of creating a conceptual representation of data, its relationship, how there is relationship between one column to another column. We will undergo with a very important topic of database, that is the keys. That her in every table there are some set of keys which used to make relationship between tables, relationship between data. तो कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इट्स रिलेशनशिप, जैसे क्या रिलेशनशिप है? सपोज देयर इज अ स्टूडेंट टेबल. स्टूडेंट टेबल में फर्स्ट कॉलम होगा स्टूडेंट आईडी, नेम, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस, और दूसरा टेबल होगा जिसमें होगा स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी, कोर्स नेम. तो वो कोर्स टेबल और ये स्टूडेंट टेबल के बीच क्या रिलेशनशिप है, वो डेटाबेस के अंदर कैसे फंक्शन होता है, दैट इज डेटाबेस मॉडलिंग. And the rule governing it. It helps organize, structure, and define how data is stored, accessed, and managed, often serving as the blueprint for database design. What are the types of data models? We have first one is conceptual data model. Conceptual focus करता है high level business requirement पर. High level business requirement means obviously when a software developer used to make a software, तो वो requirement उसे market के किसी, वो जैसे सपोज somebody has a hotel, somebody has a new hotel, तो वो किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को बुलाते हैं और वो फिर उसको डिटेल्स देते हैं कि आई वांट अ सॉफ्टवेयर और वेबसाइट ऑफ माई होटल जो ऐसा ऐसा होना चाहिए. फिर वो सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन कि वहाँ पे इतने कमरे हैं, इतने स्टाफ्स हैं, इतने टेबल्स हैं, इतने इक्विपमेंट है, इतनी वहाँ की जैसे इन्वेंट्री में कितने इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कौन करता है, हर डिटेल को लेकर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाता है. एंड देन बेस्ड ऑन दैट वो उस होटल के फ्रंट एंड से उस सॉफ्टवेयर को, उस डेटाबेस को कनेक्ट करता है. Conceptual data model define entity, attribute, and the relationship without concern for how data is implemented. Example, entity relationship diagram. There is a diagram, ERD diagram, entity relationship diagram, जहाँ पे we will study about डिफरेंट सिम्बल्स. यहाँ पे सिम्बल्स है, जैसे हम फ्लो चार्ट में पढ़ते हैं कि फ्लो चार्ट में क्या है, देर आर डिफरेंट सिम्बल थ्रू विच हम डेटा को पास करते हैं. देर इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, और उसके बीच डिसीजन में भी होता है. जैसे सपोज देयर इज अ प्रोग्राम की whether a number is greater than b, a is greater than b, तो वो जो a is greater than b वो एक डिसीजन है, तो we will put a is greater than b inside a decision symbol which is the diamond sign. यहाँ पे आप देखो कॉन्सेप्चुअल मॉडल, लॉजिकल मॉडल एंड फिजिकल डेटाबेस मॉडल. कॉन्सेप्चुअल मॉडल, लॉजिकल मॉडल एंड फिजिकल डेटाबेस मॉडल. You can see here you can see conceptual model, logical model, and
physical model, and this is the database engine. Database engine is the repository where data used to contain. now यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या होता है, जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करता है और बिजनेस प्रोसेस एंड रूल्स को कलेक्ट करता है, दैट इज द कॉन्सेप्चुअल मॉडल. देर आर फ्यू पीपल हु यूज टू गो टू डिफरेंट फर्म्स टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट को क्या क्या चीज़ चाहिए एक सॉफ्टवेयर में. देन लॉजिकल डेटा मॉडल मीन्स उस डेटा बेस में या उस सॉफ्टवेयर में कौन से डेटा टाइप की ज़रूरत है. एंड नॉर्मलाइजेशन, डेटाबेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉर्मलाइजेशन. नॉर्मलाइजेशन, डेटा को नॉर्मलाइज करना, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, देन वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म. एंड देन फिजिकल डेटा मॉडल है जिसमें कॉन्सेप्ट है प्राइमरी एंड फॉरेन की एंड व्यूज का एंड इंडेक्स का. तो हमें ये याद रखना होगा कि कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल के अंदर बिजनेस रिक्वायरमेंट, बिजनेस प्रोसेस एंड रूल्स, एंड लॉजिकल डेटा मॉडल में डेटा टाइप्स एंड नॉर्मलाइजेशन, और फिजिकल डेटा मॉडल में प्राइमरी एंड फॉरेन की, व्यूज एंड इंडेक्स. हमने एक पढ़ा था MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर. मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर भी समहाउ सिमिलर इसी तरह का है. लॉजिकल डेटा मॉडल डिटेल्स द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल टेक्नोलॉजिकल फॉर्मेट. डेटा का लॉजिकल अरेंजमेंट क्या है, लॉजिकल में हमने पढ़ा क्या है, डेटा टाइप एंड नॉर्मलाइजेशन. कि लॉजिक मीन्स इफ यू विल गिव सम इनकरेक्ट डेटा टाइप, आपने जैसे प्राइमरी की में रोल नंबर लिखा है, रोल नंबर में आपने इंटीजर ना दे के वैरकेर दे दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास रन टाइम एरर आ जाएगा. तो वहाँ पे रन टाइम एरर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा. स्पेसिफाई टेबल्स, कॉलम्स एंड कीज. हमारे टेबल में कौन से टेबल हमें बनाने हैं, कौन से कॉलम्स होंगे, कौन से कीज होंगे. रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड एज फॉरेन कीज. Physical data models define the implementation of data in a specific database system, include table structure, index, constraint, storage, consideration. फिजिकल डेटा मॉडल में हम, मैंने ये डायग्राम में बताया, फिजिकल डेटाबेस मॉडल में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है प्राइमरी एंड फॉरेन की का, एंड व्यूज का एंड इंडेक्स का. टेबल स्ट्रक्चर, इंडेक्स, कौन कौन से इंडेक्स हमने बनाए हैं, कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स, फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स, डोमेन कंस्ट्रेंट्स एंड यूनिक कंस्ट्रेंट, एंड स्टोरेज कंसिडरेशन. स्टोरेज कंसिडरेशन मींस डेटाबेस की कैपेसिटी कितनी है और हमें उसके लिए जो इंटरनल रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर की, कितनी GB रैम चाहिए, ये सब. नाउ एंटिटीज, व्हाट इज एन एंटिटी. ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट को एंटिटी बोलते हैं, जैसे कस्टमर या ऑर्डर. जो हम टेबल बनाते हैं, कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल, ये एंटिटीज हो गए. अब एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, डिटेल अबाउट द एंटिटी. उस कस्टमर और ऑर्डर का डिटेल इज द एट्रीब्यूट, जैसे कस्टमर नेम एंड ऑर्डर डेट. तो हमें ये याद रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. व्हाट आर द एंटिटीज, ऑब्जेक्ट्स या कॉन्सेप्ट, जैसे कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल. एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएगा, डिटेल अबाउट द एंटिटीज, दैट इज कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट. रिलेशनशिप क्या होगा, कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज. एग्जाम्पल, अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर. कनेक्शन क्या है एंटिटीज के बीच में, कस्टमर और ऑर्डर के बीच में क्या कनेक्शन है, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा. नाउ कीज, व्हाट इज अ प्राइमरी की, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स, यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल. मैंने बोला है, इन अ स्टूडेंट टेबल एडमिशन नंबर इज ऑलवेज द प्राइमरी की बिकॉज इट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड. Foreign key links table by referencing a primary key. What is a foreign key? A primary key in one table can be referred as foreign key in another table just to make a reference. और ये रेफरेंस इसलिए बनाते हैं सो टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सके, इंसर्ट कर सके, डिलीट कर सके, ड्रॉप कर सके, इसलिए हम फॉरेन की एंड प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. नाउ कंस्ट्रेंट, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, रूल्स लाइक डेटा टाइप, यूनिकनेस एंड डिफॉल्ट वैल्यूज. कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से होंगे, जैसे एक टेबल बनाने में जो रूल्स होते हैं, जैसे ये पार्टिकुलर डेटा टाइप वहाँ पे होना चाहिए, डेटा जो है वो यूनिक होना चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट आर द कंस्ट्रेंट्स. Now there is a very important concept of database, that is the relational algebra. Relational algebra is a formal system used for querying and manipulating relational database. रिलेशनल अलजेब्रा हम कब यूज़ करते हैं, हम बहुत सारे यहाँ पे सिमेंटिक्स यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन में, सिलेक्शन
प्रोजेक्शन में हमने यूज़ किया है, फिर यूनियन में हमने यूनियन का सिंबल यूज़ किया है, प्रोजेक्शन का सिंबल ये है एंड सिलेक्शन का सिंबल ये है। रिलेशनल अलजेब्रा इज अ फॉर्मल सिस्टम यूज फॉर क्वेरीइंग एंड मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटाबेस। क्वेरी मीन्स जब हम लिख when we want to suppose there is an employee table and I want to extract the entire detail of the employee, तो मैं क्या लिखूंगी, select asterisk from employee means select I want to select entire data from the table employee. It operates on relational and provide a set of operation to retrieve and modify data. The main operation in relational algebra are first is selection और उसका symbol ये है। फिल्टर्स रो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे हमारा स्पेसिफिक कंडीशन है सपोज सेलेक्टिंग ऑल द रिकॉर्ड वेयर एज इज ग्रेटर देन 30 मीन्स राइट अ क्वेरी टू सेलेक्ट ऑल द रिकॉर्ड वेयर एज इज ग्रेटर देन 30, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिलेक्शन सिंबल अंडरस्कोर एज ग्रेटर देन 30। नॉर्मली हम क्वेरी लिखते थे बट अगर हमें ये यूज़ करना है रिलेशनल अलजेब्रा का सिंबल तो हम ऐसे लिखेंगे। प्रोजेक्शन एक्सट्रैक्ट स्पेसिफाई कॉलम फ्रॉम अ टेबल इग्नोरिंग अदर्स, जो हम स्पेसिफिक डिटेल निकालना चाहते हैं किसी कॉलम से उसके लिए हम प्रोजेक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे जैसे नेम एज एंड स्टूडेंट, हमें बस नेम और एज चाहिए। यूनियन हम जब कंबाइन करना चाहते हैं व्हेन वी कंबाइन टू रिलेशन रिटर्निंग ऑल द डिस्टिंक्ट रो फ्रॉम बोथ द रिलेशन, जैसे स्टूडेंट यूनियन टीचर, स्टूडेंट और टीचर में जो कॉमन है दैट इज द यूनियन, इंटरजेक्शन मतलब जो अलग है। सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है ये। डिफरेंस रिटर्न रो दैट आर इन द फर्स्ट बट नॉट इन द सेकेंड रो। डिफरेंस में क्या है, हम यूनियन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। डिफरेंस मीन्स जो फर्स्ट रो में है बट सेकेंड में नहीं है। सपोज देर आर टू टेबल स्टूडेंट एंड ऑर्डर, तो वी वॉन्ट टू रिट्रीव the detail which are in the student table but not in the order table, तो हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट डैश ऑर्डर। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब बोलता है मल्टीप्लाई करना। कंबाइन ऑल द रो फ्रॉम टू रिलेशन क्रिएटिंग अ न्यू रिलेशन, दो रिलेशन है R1 एंड R2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ताकि दोनों कंबाइन हो जाए और फिर एक नया रिलेशन डेवलप हो। जैसे स्टूडेंट मल्टीप्लाई कोर्स करेंगे तो स्टूडेंट का डिटेल और कोर्स का डिटेल मर्ज हो जाएगा। रीनेम, यहाँ पे पी जैसा सिंबल है, चेंजेस द नेम ऑफ अ रिलेशन और इट्स एट्रीब्यूट। इफ वी वांट टू रीनेम अ रिलेशन, अगर हम किसी रिलेशन का नेम चेंज करना चाहते हैं तो रीनेम सिंबल ब्रैकेट एस कॉमा स्टूडेंट्स। ज्वाइन, अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन एक कॉन्सेप्ट भी है। ज्वाइन का सिंबल यहाँ पे कुछ स्टॉप वॉच के जैसे हैं। कंबाइंड रो फ्रॉम टू रिलेशन बेस्ड ऑन अ कंडीशन, दो रो को कंबाइन करते हैं बट उसकी एक कंडीशन होती है, जैसे टिपिकली एन इक्विटी और एट्रीब्यूट, इक्वालिटी और एट्रीब्यूट। एग्जांपल स्टूडेंट जॉइन स्टूडेंट डॉट कोर्स आईडी इक्वल्स टू कोर्स डॉट कोर्स आईडी। स्टूडेंट को ज्वाइन करेंगे बेस्ड ऑन कैसे, स्टूडेंट की कोर्स आईडी से और कोर्स की कोर्स आईडी, दो टेबल है स्टूडेंट और कोर्स, दोनों में क्या है, कोर्स आईडी है, तो दोनों के कोर्स आईडी के बेसिस पे हम दोनों डिटेल को ज्वाइन करके वो डेटा को मर्ज कर देंगे। इंटरसेक्शन मीन्स रिटर्न्स रो दैट अपीयर इन बोथ द रिलेशन, स्टूडेंट इंटरसेक्शन टीचर्स, वैसे रोज जो दोनों रिलेशन में है कॉमन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑपरेशन इन रिलेशनल एल्जेब्रा, वेदर इट इज सिलेक्शन प्रोजेक्शन कॉन्केटिनेशन यूनियन। हमने अभी तीनों पढ़ा, सिलेक्शन प्रोजेक्शन और यूनियन, हमने क्या नहीं पढ़ा, दैट इज कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है जिसका सिंबल है प्लस, जिसका काम है मर्ज कर देना। जैसे ए प्लस बी, अगर हमें ए प्लस बी लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए बी मीन्स ए प्लस बी को प्लस सिंबल ने कॉन्केटिनेट करके टुगेदर कर दिया। The result of Cartesian product operation is a set of all the row in both the relation, a set of all the column in both the relation, a set of column, common column between two relation, a set of distinct row from both the relation. तो a set of all the row of both the relation, Cartesian product का result क्या होता है, set of all the row of both relation, दोनों relation का सारा row। What is the result of the operation selection age greater than 25? अगर हम ये लिखते तो क्या करते हैं, ये select करता है सारा एज जिसका एज 25 से ज़्यादा है। It select all the student with age greater than 25. Which of the following operation is used to remove duplicate in the result of a union in relational algebra? हाँ, selection projection union set difference, तो इसका आंसर होगा union।
Okay, students, I will make you understand about the few topic in the next video. Till then, thank you very much. Have a nice day. Please like and subscribe.